Okay. So first of all, this is the first Zoom session once we have started with the course. तो Zoom session का पहला rule ये है कि you have to keep your mic unmute and need to keep your video on. So everyone, please keep your mic unmute and your video on. जूम सेशन का मतलब ही यही है, अदरवाइज मैं जूम सेशन क्यों ले रही हूँ? बिकॉज बेसिकली आई वांट टू डिस्कस योर प्रोग्रेस ऑन इंडिविजुअल लेवल. हम लोग चैट तो ऑलरेडी पोर्टल के थ्रू करते ही है. वहां पर आप लोगों ने अपने आप को अनम्यूट, बेसिकली म्यूट होते हो आप लोग. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू to unmute yourself and keep your video on. So Pammi has done this. So what about others, guys? If possible, please make sure that you are in an isolated room and keep your video and mic on. Zoom session में अगर आप चैट करोगे, आई विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन एनीवन. जूम सेशन का मतलब ही यही है दैट आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू स्पीक. And whenever you are joining the session, do keep the session, whenever you are joining, basically keep your username as the name from which you have taken the enrollment. Because otherwise, there are a lot of participants in the waiting room, but they are not mentioning their names. So it's difficult to admit like this. So going forward, do keep your username, your name of enrollment, and your mic and your video on. So let's start discussing. So पहली चीज, we are not discussing any technical thing basically in this session. You know that all technical things we address via software. So I have received one or two doubts on the portal. ठीक है, I think Archana has put some doubts on the portal. So I will reply to those doubts, Archana, on the portal itself, because those are very simple doubts. So I will reply on the portal itself. Now, guys, what about every one of you? I can see a lot of students being live in today's session, but there are many students who are missing also. So पहली रूल क्या है कि हम जूम सेशन रिकॉर्ड नहीं करते. आपकी हर क्लास रिकॉर्ड होती है, बट जूम सेशंस रिकॉर्ड नहीं होते. बिकॉज दीज आर टॉक सेशंस वेयर वी बेसिकली come live and ask students to speak, discuss the progress. तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं आपको बेसिकली ये समझा रही हूँ कि अच्छा ये टारगेट्स है, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड, तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. ठीक है, सो दिस विल बी नॉट रिकॉर्डेड. सो गोइंग फॉरवर्ड डोंट मिस एनी जूम सेशन. जैसे अभी हमने चैप्टर 1 to 6 कंप्लीट किया एंड वी आर टेकिंग अ सेशन, तो अब नेक्स्ट जूम सेशन में पूरा माइक्रो पोर्शन कंप्लीट करने के बाद लूंगी. There will be 2-3 sessions after micro. One session where I will be addressing again some things related to micro. 2-3 sessions जिसमें मैं on the spot आपकी वीडियो ऑन करके हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे. तो अभी जो हम पास पेपर्स भी डिस्कस करते हैं, यू मस्ट हैव सीन दैट आई एम डिस्कसिंग एमसीक्यूज इन दोस पास पेपर्स लेक्चर्स एज वेल. बट स्पेशली इंडिया वालों के लिए व्हाट आई एम प्लानिंग इज, और अभी तो आपको पता है आईएफओई में भी आपका कैमरा ऑन है, आपका माइक ऑन है, तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज दैट वी विल बी हैविंग एमसीक्यू सेशंस on Zoom only, and your mic and camera would be on, and on the spot I will give you question, and everyone will answer, and then we will discuss. तो जब माइक्रो का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा लाइव क्लास में, तो वी विल स्टार्ट विद दोज सेशंस देयर. ठीक है, तो अब मुझे, आप लोगों को पता है दैट वी आर प्रोसीडिंग एज पर 2025 सिलेबस. तो एक दो स्टूडेंट्स के ये डाउट्स आते हैं कि क्या आई आई और आईएफओए का सिलेबस सेम है. तो यस गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई एंड आईएफओए, आई का खुद से कोई सिलेबस नहीं है. आई उसी सिलेबस को फॉलो करता है जो आपका आईएफओए रिलीज करता है. तो सिलेबस फॉर बोथ आई एंड आईएफओए इज सेम. और अभी सिर्फ इंडिया वालों के पास ऑप्शन है फेब में अटेम्प्ट देने का. तो इंडिया वालों के पास दो ऑप्शन है, फेब्रुवरी और मई आपके पास. अभी आईएफए वालों के पास एक ही ऑप्शन है, अप्रैल 2025. तो we have lot of students who have basically enrolled for February 2025, and some of them I can see live, some maybe will see it later. So all those who have enrolled basically for February 2025,
तो what exactly the thing is that in live session, you guys know that all the targets that we are providing to you are as per April May 2025, because the entire schedule is based on April May 2025. आपके टेस्ट के सिलेबस, आपके असाइनमेंट्स की डेडलाइंस, आपके टेस्ट की डेडलाइंस, आपके मॉक्स की डेडलाइन, सब कुछ अप्रैल मई 2025 के अकॉर्डिंग है। तो आप में से जो भी February 2025 प्लान कर रहे हैं, बिकॉज देर आर लिमिटेड स्टूडेंट्स ओनली, बट येस वी हैव लॉट ऑफ बेसिकली स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग। तो इनिशियली आई थॉट कि मे बी वी कैन कम अप विद अ सेपरेट शेड्यूल फॉर February 2025. But again, that schedule was not feasible to make because some started for February in December, some are starting for February in January only, so some are still in the process of deciding when to start. So that schedule making was not feasible because of this open thing that February 2025 students can enroll at any time. So I thought ki what we can do is I've guided the team that whoever will be enrolling for February 2025 basically ask for the schedule from their side only. तो यू नो बेटर कि आप February 2025 के हिसाब से अपना ये अपने असाइनमेंट्स कब तक कर पाओगे, अपने टेस्ट कब तक कर पाओगे। एक हमारे अप्रैल और मई 2025 शेड्यूल के हिसाब से आप अपना एक शेड्यूल रेडी करके टीम को मैसेज कर देना, एंड टीम विल अकॉर्डिंगली शेयर द टेस्ट एंड मॉक्स विद यू वाया ड्राइव। सो रेस्ट फॉर एवरीवन द शेड्यूल रिमेन सेम। तो February 2025 को ये कंफ्यूजन थी कि हमारा जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा, तो यू कैन मैसेज द टीम फॉर योर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, एंड वी विल शेयर एवरीथिंग एज पर दैट थिंग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट है जो February 2025 प्लान कर रहा है एंड ही और शी वांट्स टू कनेक्ट विद मी ऑन इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज देर आर ऑब्वियसली अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेबल फॉर द ग्रुप लेवल। सो इफ एनी ऑफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंडिविजुअल लेवल टू डिस्कस बेसिकली कि मेरा किस टाइम तक क्या चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, प्लीज फील फ्री टू डू दैट, आई एम अवेलेबल। बट just take the time, just team को message कर दो and they will just look at the schedule and they will accordingly connect you with me. So don't hesitate for that at all. We are here for your help only. ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज में कुछ भी डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, आई एम देयर फॉर ऑल द हेल्प, बट यू नीड टू कनेक्ट फॉर दैट। सो डोंट कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, फील फ्री टू कनेक्ट। मतलब एक तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हेजिटेशन होती है कि हमें फैकल्टी से बात करने का थोड़ा सा लगता है, तो इस चीज को पहले से आप इसको तो हटाना पड़ेगा आपको। व्हेनेवर यू फील दैट देयर आर सम थिंग्स दैट आई नीड टू डिस्कस एंड दैट टू ऑन इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज क्लास में वो चीज डिस्कस नहीं हो पा रही या फिर ग्रुप सेशन में मुझे वो चीज डिस्कस नहीं करनी, फील फ्री टू पिंग ऑन द इंस्टीट्यूट नंबर फॉर सेम एंड दे विल कनेक्ट यू विद मी ऑन इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट थिंग, now chapter 1 to 6 are over from my side. सो हमने देखा चैप्टर 1 to 6 में हमने इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़ लिए, हमने डिमांड पढ़ लिया, हमने सप्लाई पढ़ लिया, हमने बैकग्राउंड टू डिमांड, बैकग्राउंड टू सप्लाई रैप अप कर दिया। बेसिकली मतलब जो आपका कोर इकोनॉमिक्स है वो एक तरीके से हमने रैप अप कर दिया। रेवेन्यू खत्म हो गया, कॉस्ट खत्म हो गया, एंड वी हैव डिस्कस मल्टीपल क्वेश्चंस आल्सो। और अगर आप अपने पोर्टल पे देखोगे तो आपके पास कंटेंट और पास पेपर्स लेक्चर्स दोनों है। मैंने आपको ये चीज ओरिएंटेशन में भी समझाई थी। और पास पेपर्स में ना आई हैव ट्राइड टू कवर बेसिकली ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स ऑफ बोथ इंडिया एंड IFOA। तो अभी बहुत सारे इंडिया वाले बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हमें भी ये वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत है। यस, बिल्कुल जरूरत है, बिकॉज MCQs आर नॉट गोइंग टू बी too direct now. You can if you are not sure about a particular point, see, if you're not able to understand a particular point and if that same point gets tested in MCQ, it is slightly difficult to attempt. What you can do is, जैसे अगर कोई हम 5 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैंने उसमें 5 पॉइंट्स बनाने के लिए बोले, तो आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ना भी आप बना पा रहे हो, लेकिन आपको वो 5 कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि अच्छा दिस कैन बी द आंसर। फॉर एग्जाम्पल कल ही हम एक सेशन में डिस्कस कर रहे थे CB2 में कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस वजह से अराइज होती है, तो एटलीस्ट आपको ये की पॉइंट्स पता होनी चाहिए कि हाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन वजह से अराइज होती है। इवन दो यू आर नॉट एबल टू मेक कंप्लीट पॉइंट्स, दैट वर्क्स फॉर यू। तो मतलब ये एक एडवांटेज है आपके पास कि आपको पॉइंट्स नहीं बनाने हैं पूरे, बट हाँ आपको कीवर्ड्स पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपको कीवर्ड बहुत जरूरी है पता होना, अदरवाइज दैट्स द ओनली रीजन दैट आई एम आस्किंग आई स्टूडेंट्स टू डू द क्वेश्चंस, बिकॉज अदरवाइज इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए आप तभी प्रिपेयर्ड रहोगे जब आपको कोर कंटेंट अच्छे से आता है। इसीलिए हमने कंटेंट लेक्चर्स और पास्ट पेपर्स लेक्चर सेग्रीगेट करे हैं। डोंट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एमसीक्यूज इवन इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम आई, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज, स्पेशली जैसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करें, वो तो डेफिनेटली आप करो ही करो। जो आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन हैं, या हमने कुछ कुछ 20 मार्कर क्वेश्चन भी डिस्कस करे हुए हैं, तो वो आप कट शॉर्ट करके उनके की पॉइंट्स कर लेना। एंड बेसिकली डोंट वेट कि हाँ अगर लाइव क्लास का टारगेट ऐसा आ रहा है तो अभी मैं थोड़ा स्लो चल सकता हूँ, तो इस चीज के लिए वेट मत करना, बिकॉज ऑल द टारगेट्स आर एज पर अप्रैल मई 2025। फेब्रवरी वालों के लिए आपके पास यही है, देखो वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ जनवरी, यू हैव योर एग्जाम इन फेब्रवरी, यू जस्ट नीड टू रैप अप एवरीथिंग एसएप, दैट्स द ओनली टारगेट। सो आपके पास सारे लेक्चर्स हैं, आप सिर्फ लेक्चर्स देखो। इफ यू वांट टू स्किप द समरी लिस्ट यू कैन स्किप द समरी लिस्ट, बिकॉज मैंने कल भी लाइव सेशन में ये चीज समझाई है कि जैसे CB2 समरी लिस्ट 1 हमने कंप्लीट करी है कल, तो मैंने कल लाइव सेशन में आपको यही बताया कि बेसिकली मैंने सारे क्वेश्चन CB2 समरी लिस्ट 1 से कवर कर लिए। तो अगर आपको वो स्किप करनी है, लेकिन आप अगर वो स्किप कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू शुड बी रेडी टू हैंडल ऑल द पास्ट पेपर्स वीडियोस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ कंटेंट लेक्चर्स देखे और उसके बाद आप समरी लिस्ट स्किप कर रहे हो और आप डायरेक्टली असाइनमेंट्स पे मूव कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर बेसिकली डिक्रीजिंग योर स्टेप्स। तो स्टेप्स एक्चुअली में क्या है? फर्स्ट थिंग इज कंटेंट लेक्चर्स, second thing is your past papers lectures, third thing is in case if you are not attending live sessions for any reason, if you are just in videos or if you are in live also but you are not able to make it live, third important thing is not to miss any of the recent live session, because it's very important to attend, reason being जो भी latest चीजें होती है, जो भी latest discussion होते हैं, latest topics होते हैं, latest कुछ भी change आता है, मैं हर live session में अपने वो discuss करती हूँ। So it's important that you are watching the latest live sessions also. After that if you want to skip the summary list, ये सब कुछ करने के बाद आपके पास बिल्कुल स्किप कर सकते हो। उसके बाद मूव टू योर असाइनमेंट्स एंड देन यू हैव योर यूटी। तो दिस इज द शेड्यूल, और अगर हम इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आई मतलब वी कैन बेसिकली मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू कैन पास। तो रीजन फॉर नॉट पासिंग इज बेसिकली दैट वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो हमें ये समझना है कि एग्जामिनर हमसे क्या चाह रहा है, चाहे आप CB2 दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सी what is important for you is basically to get a hold over what is required. So there are a lot of students who are planning multiple subjects as well, like some are planning CB1 CB2, some are planning CS1 CB2, some are planning CM1 CB2 as well. So make your study calendar, make your timetable like this, that basically अगर आप एक बड़ा सब्जेक्ट आपने CM1 उठाया तो आपका ज्यादा टाइम CM1 पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि your preparation should not be like this कि अच्छा मैंने 10 दिन CM1 कर लिया, अब मैं 2 दिन CB2 कर रही हूँ, फिर मैं 2 दिन CM1 करूंगी, फिर मैं 4 दिन CB2 करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, इट हैज टू गो साइमल्टेनियसली only. So plan your daily table like this कि for example if you can give 3 hours on a daily basis, I'm just giving you an example, if you can give 3 hours on a daily basis, it should be 2 hours to CM1 and 1 hour to CB2. And similarly if you're planning CS1 CB2 for example, so you can give 1.5 hours, 2 hours to CS1 and the remaining hours to CB2. If you're planning CB1 CB2, you can equally divide your time. तो you have to see कि which subject combination you have picked, और इन सब चीजों के लिए मतलब you don't have to keep these questions to yourself. The team is available for all your help. We have guided everyone, so you know कि how instant response is there. So एक चीज जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी is बेसिकली कि आप ना मैसेज किया करो, मतलब डोंट डू एनी कॉल्स, ट्राई टू मैसेज ऑन इंस्टीट्यूट नंबर, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर है बेसिकली 995890 वाला जो नंबर है, ट्राई टू मैसेज ऑल योर क्वेरीज ऑन दैट नंबर, बिकॉज नाउ अ डेज व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग इज दे जस्ट मैसेज ऑन ऑल द 3 numbers. So as of now 3 numbers are active, तो टीम हमें इन्फॉर्म करती है कि स्टूडेंट कीप्स ऑन मैसेजिंग द सेम थिंग्स ऑन ऑल द numbers. So it gets difficult for the team also to handle multiple requests. So what you can do is एक में नंबर पे मैसेज करो, that's it. The team is available till 6 p.m.
from 10 a.m. to 6 p.m. the entire team is available for all your help. तो अगर आप कुछ रात को मैसेज करते हो तो प्लीज वेट फॉर द टीम टू कम नेक्स्ट डे एंड दे विल रिजॉल्व योर इशू. अदरवाइज जो भी आपके इश्यूज होते हैं ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व बिफोर 6 p.m. ओनली. एंड अगर कुछ इशू लिंगर ऑन होगा तो इट विल ऑटोमेटिकली बी हैंडल्ड बाय द टीम नेक्स्ट डे. ठीक है. और जो भी आपके मन में आ रहा है कि अच्छा मुझे इस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्पल टाइम है, फॉर एग्जांपल अभी तक आपने सिर्फ CV2 पिक किया है, ठीक है, और अभी आपको लग रहा है मेरे पास एम्पल टाइम है लेकिन मैं इंडिया प्लान कर रहा हूँ, तो इंडिया वालों के पास तो अभी मेंबरशिप लेने का भी मतलब कोई वो नहीं है. आपको इंडिया में तो पता ही है कि आपको कोई भी एग्जाम देना तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी. ठीक है. तो मेंबरशिप आपको लेकर आप अपना, अगर आपको लगता है कि आप CV2 मैनेज के साथ साथ और एक एग्जाम पिक कर सकते हो तो गो फॉर CS1 और CM1 फॉर May 2025. तो दिस आई एम गाइडिंग फॉर II स्टूडेंट्स हु हैव पिक्ड ओनली CB2 as of now and they are in dilemma whether to go for CS1 or CM1. तो go for CS1 or CM1 in May 2025 and accordingly take your decision at the time of filling the exam that whether I am ready for this subject or not. तो मैं हमेशा ये गाइड करती हूँ कि देखो यू शुड यूटिलाइज योर टाइम वेल. आप अगर ये सोच के सिर्फ सब्जेक्ट उठाओगे कि अभी मेरे पास नहीं है टाइम, मेरे को एक छोटा सब्जेक्ट पिक करना है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी थिंकिंग है ना वो भी ऐसी हो जाती है कि हाँ यार टाइम नहीं है. अभी मैं इवन इफ यू कैन गिव 2 आवर्स ना, आप दिन का आधा घंटा 1 घंटा ही देते रहते हो, लेकिन अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाए हैं या 3 सब्जेक्ट्स वट एवर देर आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो आप अकॉर्डिंगली उस तरीके से पढ़ोगे. सो डू मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम वेल. And there are students basically who are planning for job as well. Basically the reason for coming into actuarial is that we have to land up to job ASAP. So for them it's very important that you are clearing 3 to 4 exams in order to compete with other students. And in those 3 4 exams CM1 and CS1 is very very important. Okay. CB1 CB2 are filler exams, they are also important, they are also equally recognized, but when it comes to getting a job CM1 is extremely important in order to get a job. सो डू मेक श्योर कि अगर आपके पास जॉब के लिए आप एक्चुअल की फील्ड में एंटर हुए हो और आप एज अ फ्रेशर एंटर हुए हो तो आप CM1 तो डेफिनेटली पिक मतलब एग्जाम दो ही दो. Rest all who have time, say 1 year left for their graduation to complete, 2 years left for the graduation to complete. So you have time, you can go for CS1, CV1, CS1, CV2, CM1, CV2 accordingly. Now, so let's just discuss कि अभी आप लोगों का चैप्टर 1 to 6 तक कितना हो. So I honestly, I want honest answers from every one of you because portal is live in front of me. I can see कि किसने कितने minutes देखे हैं. ठीक है. I can see who all are live and I can also see कि who out of those who are live, तो how many minutes have been completed, how many videos have been completed. ठीक है. तो ये टीम ने मेरे पास लिस्ट ऑलरेडी आपकी है, बट मुझे आप लोगों से समझना है बेसिकली कि अभी कैसा चल रहा है. सो यू कैन आंसर इट. You can unmute your mic and speak. You can write in the chat section. Whatever way you feel is convenient, just do that. Okay, so Daman, yes. Answer. Hello, ma'am. Ma'am, actually, I have my SEM exams. Okay. So actually, I'm a fresher. So मैम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो Okay. अभी मैंने जितने अपने पेज पे वीडियोस देख सकती थी मैंने देखी हैं. सो हम्म. दैट्स ऑल. सो मैम आई एम ट्राइंग अभी. तो वही कंफ्यूजन हो तो रही अभी है. आप कौन से ईयर में हो दमन? फर्स्ट ईयर मैम. फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है. और अभी कोई और एग्जाम साथ में प्लान कर रहे हो? मैम अभी तो मैंने अब यही डिलेमा में हूँ मैं कि CB2 दूँ या CS1 दूँ, क्योंकि अब एकदम बैकलॉग आ जाएगा तो इसकी वजह से. ओके ओके. और मेंबरशिप है अभी आपके पास या मेंबरशिप नहीं है? नहीं है अभी मैम. अच्छा, मेंबरशिप नहीं है. देखो पहले तो सबसे पहले जो IFOA वाले स्टूडेंट्स हैं, इतना लेट क्यों करते हो आप में लोग मेंबरशिप के लिए? आप लोगों के पास मल्टीपल नोटिफिकेशन आ चुकी है, कल लास्ट डेट है मेंबरशिप अप्लाई करने की. आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद मेंबरशिप मिलती नहीं है. ठीक है, मेंबरशिप मतलब वो बहुत रिगरस क्राइटेरिया रहता है, आपको बार बार कॉल्स करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है. आपकी एप्लीकेशन कल तक उनके पास पहुंच जानी चाहिए. उनका रिप्लाई जब आएगा उसके बाद बेशक पेमेंट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन कल तक IFOA के पास जानी चाहिए.
तो ये डिसीजन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि वेदर यू आर गोइंग टू अपियर फॉर 2 एग्जाम्स और नॉट। सी दमन, इफ यू फील, इफ अभी आपके पास एक तरीके से 3.5 मंथ्स हैं, सो इफ यू फील कि आई कैन मैनेज माई बैकलॉग्स एंड आई कैन जस्ट be at par with the targets which is required, I would recommend you go for 2 subjects, because ये तो एक तरीके से मिनिमम रिक्वायरमेंट ही है। आप सेमेस्टर के एग्जाम्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड वी गिव बिकम एग्जॉस्टिव एंड ऑलरेडी उसका भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बट दैट्स फॉर एवरीवन। सी who all are in college, they have their semester exams respectively, so you have to manage yourself and you have to see कि बस मैं जल्दी से कॉलेज के एग्जाम्स रैप अप करके उसके बाद आई एम गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू माई एक्चुअल स्टडीज, एंड मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी आप दोनों सब्जेक्ट्स दो। बट अगर लग रहा है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो फिर जिस सब्जेक्ट में आप इस टाइम पे ज्यादा कंफर्टेबल हो आप वो सब्जेक्ट प्लान करो। ओके। ठीक है guys, what about others? So Ansh is saying done with the micro part of CB2, left with past papers lectures। तो अंश माइक्रो पार्ट में मतलब आपने एक तरीके से पूरे चैप्टर्स माइक्रो के कंप्लीट कर दिए, और अभी आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी सिर्फ आपने इसका मतलब कंटेंट लेक्चर्स कंप्लीट करे हैं, यू आर स्टिल टू डू पास्ट पेपर्स लेक्चर्स, और एग्जैक्टली व्हाट्स द सिनेरियो? पास्ट पेपर लेक्चर्स आर लेफ्ट। अच्छा, तो पास पेपर्स लेक्चर्स तो अभी तो टाइम टाइम लगेगा आपको, मतलब 10-12 डेज पास पेपर्स लेक्चर्स रैप अप करने में भी आराम से लग जाएंगे। तो स्पीड अगर मैं आपकी देखूँ तो इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, एक तरीके से माइक्रो तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, पास पेपर्स लेक्चर्स रहते हैं, तो अभी बिल्कुल भी मैक्रो पे मूव नहीं करना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रैप अप ऑल द पास पेपर्स लेक्चर्स, और जब आप पास पेपर्स लेक्चर्स देखोगे तो यू हैव टू डू द क्वेश्चंस एज इफ यू आर सिटिंग इन द लाइव क्लास। तो जैसे आपको पता है मैं लाइव सेशन में अब लोगों को जैसे हम लोग टाइम देते हैं, तो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड देन एज इफ यू आर सिटिंग इन द लाइव क्लास उसी पे अनपॉज करो अपनी वीडियो को, और फिर देखो कि हाँ मेरे आंसर्स और स्टैंडर्ड आंसर में कितना फर्क आ रहा है। तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने अभी कंटेंट पूरा माइक्रो को कंप्लीट किया वो कितना ज्यादा आप उस चीज पे श्योर हो। आपके पास बहुत अच्छा मीडियम है कि अभी पास पेपर्स लेक्चर सारे रहते हैं, और उसको ऐसे ही आपने वॉच करना है एज इफ यू आर सिटिंग इन द लाइव क्लास। डोंट वॉच इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग कि अच्छा अभी मैम ने टाइम दिया, इस टाइम को हम फॉरवर्ड करते हैं और फिर हम डायरेक्टली सिर्फ आंसर वाले पे आ जाते हैं। बिल्कुल वैसे मत करना। Attempt as if you're sitting in the live class, write your points, see how you are able to compare it with others, where you are currently standing, और जिन भी एरियाज में आपको लगेगा कि हाँ मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया में अभी थोड़ा सा और रिवाइज करने की जरूरत है, उसकी कंटेंट पे वापस आ जाना, या फिर उसकी असाइनमेंट पिक करना कि अच्छा इसके असाइनमेंट उठा लेते हैं अब, तो आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा कि हाउ मच यू आर एबल टू डू असाइनमेंट। ठीक है, बाकी विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इट्स गोइंग फाइन। ओके, सो पम्मी यस। मैम मैम मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया है लेक्चर्स देख देख के। और मैम जैसे कल मैं लाइव मैंने कल वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ली थी ऑफलाइन। तो फिर मैंने देखा था कि मेरे मतलब कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो काफी वीक हैं, तो मैंने घर आके वापस से रिवाइज किया था कल ही सब हम्म कुछ step। और मैम अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैम उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होता है जो चैप्टर के पीछे दिया होता है, तो मैम प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो करने तो है, बट आप ये समझो प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, एक्सेप्ट जिनका एग्जाम स्टाइल मेंशन है, उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन इज समथिंग वेरी इजी। तो वो कर लो, वो ऑलरेडी आप एक तरीके से जब हमने कंटेंट लेक्चर्स करे हैं तब उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हमने कवर करे हैं, वो तो आपके हो ही चुके हैं। आप पास पेपर्स लेक्चर्स पे फोकस करो, मतलब योर मेन फोकस इज पास पेपर्स में, और आपको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जैसे मैंने अंश को समझाया, जब तक आप पास पेपर्स लेक्चर्स इस तरीके से नहीं देखोगे कि मेरे को लेक्चर को पॉज करना है, मेरे को आंसर को अटेम्प्ट करना है, फिर मैं लेक्चर अनपॉज करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि मेरे आंसर कैसे मैच हो रहे हैं और उसके बाद मैं अटेम्प्ट करूँ। अगर आप सिर्फ सुनोगे ना, जैसे आप कंटेंट लेक्चर्स को सिर्फ सुनते हो, तो बिल्कुल गलत अप्रोच है पास पेपर्स लेक्चर्स की। तो यू हैव टू मेक श्योर एज इफ यू आर अटेंडिंग। हम पास्ट पेपर लेक्चर्स में ऐसे देखती हूँ जैसे आप क्वेश्चन देते हो एंड देन मैं हम्म उसको लैपटॉप पे टाइप करके अपना हम्म रख लेती हूँ। एंड देन परफेक्ट। फिर जो आप आंसर बताते हो उस हिसाब से मैं फिर उसमें ठीक मॉडिफिकेशन है, करके उसको समझ लेती हूँ। तो इस टाइप ठीक है, से लैपटॉप की भी वो ठीक है। प्रैक्टिस हो रही है तो टाइपिंग में। अभी जो आपने माइक्रो पोर्शन कंप्लीट किया है उसके सारे लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं, बस आपने ये मेक श्योर करना है। यस मैम। और मैम
मेरा एक और डाउट था, जैसे हमारा असाइनमेंट और यूटीज का डेट अभी फेब में स्टार्ट हो जाएगा ड्यू हम्म होना। तो हम्म मैम वो जो उसमें जो डेट दे रखी है, जैसे फर्स्ट हमारा 5 फेब को दे रखा है, 5 फेब हम्म। को, तो मैम उस दिन हमको सबमिट करना है? आपको मतलब हम उस दिन, यस उस दिन, बस आपकी उस दिन तक आप सबमिट अभी भी कर सकते हो अपनी असाइनमेंट्स। बेसिकली दैट्स द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. So, matlab you have, say for assignment 1, so for chapter 1 to 6 assignment, you have time till 5th February to watch all your content lectures, to watch all your past papers lectures, and to watch all your live session lectures in case you have missed. लेकिन 5th February के बाद आपकी जो सेकंड डेडलाइन है, अब आप वो देखोगे कि बहुत ज्यादा नियर होना स्टार्ट हो जाएंगे. बिकॉज जो हमने 5th February का टाइम दिया, वो हमने एक तरीके से मैक्सिमम टाइम दे दिया कि यहाँ तक अब बच्चा बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, बेस क्लियर हो जाता है. तो उसके बाद टाइम आपका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं कि 5th February तक सिर्फ चैप्टर 6 तक ही लेके बैठना है. यू शुड जस्ट ट्राई कि मेरा जितना जल्दी से जल्दी हो रहा है, आई नीड टू रैप अप एवरीथिंग एसएप. 5th तक मैक्सिमम डेडलाइन है मेरे पास असाइनमेंट सबमिट करने की. ठीक है. और जो भी आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन बाय प्रचिति कि डाउट्स का कैसे रिजॉल्व होंगे. देखो मैंने पहले भी समझाया है, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, सिंपली पुट ऑन पोर्टल, दैट्स इट. पोर्टल में डालने के बाद यू कैन लीव अप टू अस कि हाउ वी आर एबल टू आंसर इट. इफ इट इज समथिंग दैट कैन बी आंसर्ड बाय पोर्टल, आई विल एड्रेस बाय पोर्टल. इफ आई फील देयर इज अ नीड फॉर द सेशन, आई विल आस्क द टीम टू कीप द सेशन. सो अभी आप लोग डाउट्स डालोगे तभी तो मैं डाउट सेशन रखूंगी. मेरे पास सिर्फ आज संडे को अर्चना के 2 डाउट्स आए, इसके अलावा और किसी का कोई भी डाउट नहीं आया. So now it's time for you guys to start practicing and start putting your doubts in the portal so that we can accordingly address it. So okay, so अभी let's just pace it up. बहुत सारे hands raise हो रहे हैं, तो जल्दी से बताओ दीपांशु. Yes. मैम CB2 का चैप्टर 9 तक कर लिया कंटेंट लेक्चर्स. अच्छा, चैप्टर 9 तक कंटेंट लेक्चर्स कर ली. ओके, व्हाट अबाउट पास्ट पेपर्स लेक्चर्स? मैम अभी वो देखने शुरू नहीं करे क्योंकि मैं CB1 भी कर रहा हूँ और CS1 भी कर रहा हूँ. ओके, तो CB1 भी दे रहे हो, CS1 भी दे रहे हो, CB2 भी दे रहे हो. कब दे रहे हो? मई 2025 में? नहीं नहीं मैम, अप्रैल. अप्रैल IFO है. 2025 में. ठीक है. तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो उस हिसाब से स्पीड बिल्कुल ठीक है. अगर खाली एक दे रहे होते तो मैं बोलती कि थोड़ा ठीक है, बट अभी स्पीड आपकी फाइन है. बट एक ये आदत हटाओ कि सिर्फ कंटेंट देख रहे हो. मेरे को एक तो आप लोगों की ना ये आदत नहीं समझ में आ रही. कंटेंट अगर खत्म करना, देखो कंटेंट को अगर पॉज देना है तो वो यूनिट वाइज पॉज दो ना, क्योंकि समरी रिलीज असाइनमेंट सब कुछ यूनिट वाइज है. तो कंटेंट को आपको चैप्टर 6 पे पॉज देना चाहिए था, उसके बाद चैप्टर 6 तक उसके पास पेपर्स करने चाहिए थे. बट अभी चलो जो कर लिया ठीक है. अब आपको मूव फॉरवर्ड विद द पास्ट पेपर्स एंड देन कम बैक अगेन टू द कंटेंट. मैम वो मेरे को ना इसमें इशू ही नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स करा है तो मेरे को सारा आ ही रहा है, तो पेपर सॉल्व करने का लग नहीं रहा इशू. नहीं, वो देखो तो सही. अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, मैं मेरे को सब आता है, पास्ट पेपर्स लेक्चर्स 2x पे देख लो. एटलीस्ट ये तो होगा कि हाँ मैंने एकदम कवर कर लिया. 2x पे देखो, नहीं लेकिन मैम, उसको वो खत्म नहीं. मेरा ये था कि पहले माइक्रो पूरी खत्म कर लूँ, उसके हाँ साथ तो चलो एक ठीक बारी है, में करूँगा. माइक्रो खत्म कर लो और आप माइक्रो के पास पेपर्स उठा लेना. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी, उमंग. यस. हेलो मैम. ओके. हेलो. मैम एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर. हाँ. सो मैम एक्चुअली मैंने कल ही कोर्स लिया है और मैं एक्चुअली वर्किंग हूँ अभी. तो मैं CB2 प्लान कर रहा था फेब में देने का. ओके. और तो मैं उसके रिगार्डिंग आपसे कुछ जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने तो वर्किंग हूँ तो मैं लाइव लेक्चर्स तो आपके देख नहीं पाऊंगा, तो मैं सिर्फ पास्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वाला कोर्स लिया है मैंने. ओके. सो एक उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाह रहा था कि हाउ शुड आई अप्रोच दिस एग्जाम. और ओके. CB2 थोड़ा बहुत मेरा एक सच जो बैकग्राउंड है वो बीटेक इलेक्ट्रिकल है. तो लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह मैं दे रहा था तो थोड़ा बहुत मुझको आइडिया है, बट नॉट फुली वेल वर्स्ड विद इकोनॉमिक्स एंड ऑल. तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे कुछ गाइड कर पाएं अगर, तो क्योंकि टाइम मेरे पास भी ओके. बहुत कमी है. ओके, तो सबसे पहले ना उमंग, यू नीड टू वॉच द लेटेस्ट ओरिएंटेशन सेशन फॉर अप्रैल मई 2025. वहां पर आपको पूरी एक तरीके से ना अप्रोच पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली हम कैसे प्रोसीड करते हैं. सो इररिस्पेक्टिव वेदर यू हैव स्टार्टेड इकोनॉमिक्स पहले और नॉट, ऐसा नहीं है कि CB2 बहुत मुश्किल है. इट जस्ट CB2 में बस दिक्कत क्या है कि कंटेंट बहुत ज्यादा है. मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू मेमोराइज. और अब बिकॉज एग्जाम आपकी क्लोज्ड बुक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कोई को रीडिंग रेफर कर सकते हो. तो बस CB2 में एक ही
इशू है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड एनीथिंग कैन बी टेस्टेड इन एग्जाम। तो पहले सबसे पहले आई वुड रिकमेंड यू कि गो फॉर ओरिएंटेशन, ठीक है, लेटेस्ट ओरिएंटेशन अप्रैल में 2025। अगर लिंक नहीं है तो वाईटी लिंक है, टीम से मांग लेना, दे विल फॉरवर्ड यू दैट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पोस्ट दैट जस्ट स्टार्ट विद योर चैप्टर 1 to 6। उन्होंने अभी आपको टारगेट्स दिए होंगे कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बस आपको एक बार ये चेक करना है कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। लाइव सेशन में चैप्टर 1 to 6 की डिस्कशन रैप अप हो चुके हैं, तो उसके कंटेंट और पास पेपर्स लेक्चर्स आप ट्राई करो कि रैप अप करने का। उसके बाद जैसे जैसे आपके पास टारगेट्स आते रहेंगे, जस्ट कीप ऑन प्रोसीडिंग विद दैट। बट सिंस यू आर प्लानिंग फेब्रुअरी और टारगेट्स आपके अप्रैल के हिसाब से आएंगे, तो मैंने वैसे आपको बोला कि बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे एसएप सब कुछ रैप अप करना। लेकिन since you are from working field also, तो it takes time to understand things, I can understand that. And since you are starting as a fresher, तो it takes some time to memorize the things or to understand the things, तो take some time to first grasp your concepts. So अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे माइक्रो के पहले मैं कंटेंट खत्म कर लूँ, जैसे अभी बाकी स्टूडेंट्स करें कि माइक्रो का मैं कंटेंट खत्म करूँ, फिर मैं माइक्रो के पास पेपर्स पे आऊंगा, फिर मैं मैक्रो का कंटेंट पिक करूंगा, फिर मैं मैक्रो के पास पेपर्स पे आऊंगा। तो मतलब जनवरी का मिडिल आप आ चुके हो, आपको ये ट्राई करना है कि नेक्स्ट 10 to 12 डेज में माइक्रो का कंटेंट किसी तरीके से आप रैप अप करो, और उसके बाद फिर पास पेपर्स नेक्स्ट 10 डेज, फिर मैक्रो का कंटेंट फॉर नेक्स्ट 10 to 12 डेज, एंड देन मैक्रो के पास पेपर्स। और फिर उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स और टेस्ट रह जाएंगे, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। इसलिए हमने थोड़ा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखा है, क्योंकि फेब्रुवरी वालों के पास टाइम कम है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम पहले लेक्चर्स वॉच करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट्स टेस्ट देंगे, तो इसलिए इट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। जब आपको टेस्ट देना है, आप टीम को नोटिफाई कर देना, दे विल शेयर द टेस्ट विद यू। ओके ठीक है, यस मान्या। मैम तो जो कंटेंट लेक्चर्स थे, मैंने आपको ओरिएंटेशन में बोला था ना कि वो पूरे हो गए थे, माइक्रो मैथ्स। और जो पास्ट पेपर लेक्चर्स हैं वो 6 चैप्टर तक के अभी पूरे हो गए हैं। तो अभी CS1 भी दे रहे हो ना आप साथ में? हाँ। हाँ, तो बस CB2 का तो एक तरीके से आप पूरे एक तरीके से कोर्स तो आप कर चुके हो, बस पास पेपर्स रहते हैं आपके। हाँ, तो बस ठीक है, स्पीड ठीक है। CS1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दो एज ऑफ नाउ, और CB2 का ये ट्राई करो कि बस दिन की मतलब 2 दिन में एक वीडियो खत्म कर दो CB2 की, आराम से, आपके पास सफिशिएंट टाइम। तो जैसे जो पास्ट पेपर लेक्चर्स होते हैं, जनरली क्या होता है, उसको मैं ऐसा 2x पे देखती हूँ, मतलब ओके। वही जैसे आपने बोला कि स्टॉप करके आंसर लिख, तो यस, वो हो जाती है, आधे घंटे में भी खत्म तो हो बस जाती फिर ठीक है, बस फिर दिन की एक वीडियो टारगेट करो CB2 की, और थोड़ा सा फोकस अब आप CS1 के पास पेपर्स लेक्चर्स पे करना स्टार्ट कर दो। है। ठीक है। और मैम एक दिन में एवरेजली स्टडी टाइम कितना आना चाहिए? अभी तो कॉलेज नहीं चल रहा बिल्कुल तो भी। 2.5 to 3 hours देना स्टार्ट कर दो CS1 को, और 1.5 CB2 को। बस इतना अगर आराम से मैनेज कर सकते हो तो मोर देन ओके। ठीक है, यस पार्थ। मैम मेरा माइक्रो का कंटेंट ओवर हो गया एंड मैं फेब में प्लान कर रहा हूँ, एंड मेरा ओके CM1 है मई में। सो मेरे को ओके, कब तक अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए देखो फेब के अगर लिए? CB2 फेब में प्लान कर रहे हो, माइक्रो का कंटेंट ओवर हुआ है, तो 10 दिन में माइक्रो के पास पेपर्स खत्म करो। ठीक है, मतलब जनवरी तक आप ये ट्राई करो कि मेरे माइक्रो का पास पेपर्स सब कुछ खत्म हो जाए, मेरा माइक्रो का असाइनमेंट्स भी हो जाए, माइक्रो के पास पेपर्स भी हो जाए। उसके बाद आपका फेब में कौन सी डेट को एग्जाम? 22nd। 22 तो 22 दिन हमारे पास बचेंगे, तो लेट्स से 26 जनवरी तक माइक्रो के पास पेपर्स रैप अप करो, और 26 जनवरी से ट्राई करो से 12 फरवरी तक मैक्रो का कंटेंट, बिकॉज मैक्रो के कंटेंट में यू विल नीड सम टाइम एज वेल। और फिर 12 से 20 मतलब 18 19 तक मैक्रो के पास पेपर्स, और फिर जो आपके रिमेनिंग डेज रह जाएंगे जस्ट अ क्विक रिविजन। तो मतलब आपको मैं इसलिए एक्स्ट्रा टाइम इतना सारा दिया कि जब जो चीज आप कर चुकी हो, जैसे माइक्रो में आपने इतना टाइम लगा चुकी हो, आप माइक्रो के जब पास पेपर्स करोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइक्रो के किसी कंटेंट में आपको आने की दोबारा से नीड पड़ जाए। आपको इस तरीके से अभी अपने ये 10 12 दिन यूटिलाइज करने हैं कि आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम माइक्रो, आई एम रेडी टू हैंडल दैट, बिकॉज इट्स MCQ, तो मेमोराइज वाली चीज का कोई इशू नहीं है। तो इट्स जस्ट कि यू नीड अ गुड होल्ड ओवर योर कॉन्सेप्ट्स, दैट्स इट। So next 10 to 12 days, try to wrap up your micro past papers. Then next 15 days, try to wrap up your macro content. And 15 17 days, जितना जल्दी पास पेपर्स माइक्रो के खत्म करोगे, उतना ज्यादा टाइम आप मैक्रो के कंटेंट को दे पाओगे। And then remaining 7 to 8 days for your macro past papers. ओके मैम, एंड एग्जाम में माइक्रो एंड मैक्रो की वेटेज सेम है?
ऑलमोस्ट सिमिलर सी आती है, मतलब इंडिया में सेग्रीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है. एट टाइम्स दे टारगेट मैक्रो मोर, एट टाइम्स दे टारगेट माइक्रो मोर, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है. मतलब डोंट सेग्रीगेट विद रिस्पेक्ट टू दिस, बट स्टिल यू कैन जस्ट थिंक लाइक दिस. 60% थोड़ा सा मैक्रो हो जाता है, 40% माइक्रो हो जाता है. ओके. ठीक है. Next messages that I have received. Achyutan says I have completed till chapter 5. Content lectures not completed. Past papers lectures and lecture. Achyutan try to pace up. थोड़ा सा slow चल रहे हो. Komal, I have completed only content lectures. सिर्फ 7 lectures हैं. Can I appear in February? तो कोमल अगर सिर्फ और सिर्फ अभी content lectures हुए हैं and that too सिर्फ अभी 7 lectures watch करे तो बहुत पीछे चल रहे हो. आपके सामने है जो फेब्रवरी वाले हैं, एक तरीके से उनका माइक्रो पोर्शन खत्म हो चुका है, कि एटलीस्ट कंटेंट माइक्रो का खत्म हो चुका है. तो अगर आपको करना है प्लान तो आपके पास जनवरी तक का टाइम है. बेसिकली आपका जनवरी तक माइक्रो का सब कुछ आपका खत्म होना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू कैन प्लान फॉर फेब्रवरी. अदरवाइज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज स्पीड अभी थोड़ी स्लो चल रही है. Archana says, I have completed only content lectures and past papers lectures, not completed MCQs. तो थोड़ा सा पेस अप कर लो अर्चना. रेस्ट आई नो कि यू आर प्लानिंग CB1 ऑल्सो, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पीड इज फाइन. Ma'am, hello. Yes. Yes, I'm yes. thinking to write IFO. I have already communicated with you. Hmm. So, and I am started my career like after a long break, and after giving a break of my working career. Okay. So, थोड़ा सा टफ जा रहा है बिकॉज 2011 के बाद अभी स्टडी करना शुरू किया है. अच्छा, then तो it's very tough. Yes. Yes, because insurance में थी मैं already and I have Okay. given taken a career break just to start do something extra. So I was working in an actuarial team itself. So इसलिए सोचा कि एक्चुअली करती हूँ. तो पर मैम मुझे ये लग रहा है कि मेरा पेस काफी स्लो है बिकॉज आई हैव जस्ट थॉट फॉर दिस जस्ट 2 week बिफोर एंड जब से कोर्स ज्वाइन किया है तब से ही पढ़ाई कर रही हूँ. सो केवल 1 to 6 ही कंप्लीट हो पाया है. मीन्स वॉट एवर यू आर असाइनिंग उतना ही तो कर उस पा रही हूँ हिसाब बट से तो आप एमसीक्यूज बिल्कुल वगैरह ठीक नहीं चल देख रहे पा रही हो. हूँ. हाँ, तो दैट्स ओके. थोड़ा बहुत तो पीछे चलते हैं. मतलब देयर आर स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड. आप ये देखो कि 1 to 7, 1 to 8 तक ही अभी फेब में अटेम्प्ट दे रहे हैं. तो इफ द स्पीड इज दिस एंड इफ यू आर प्लानिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स तो इट्स कम्प्लीटली फाइन. तो मतलब एंड बेसिकली मेरे साथ दिक्कत क्या हो जा रहा है, इट्स टोटली ऑड आवर्स. मैं फिलहाल एकदम नाइट है यहाँ पे तब मैं ओके. सेशन अटेंड कर रही हूँ. तो ओके. उस वजह से थोड़ा टफ जाता है. लाइक व्हेन आई एम अटेंडिंग दिस तो मेरा फिर दिन का आउटपुट बहुत कम निकल जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स इन अ फैमिली लाइफ तो इट्स टफ टू मैनेज एवरीथिंग. हाँ, ऑफ कोर्स एक्सक्यूजेस नहीं है बट हाउ टू एक्सपेडाइट और किसको ज्यादा मतलब फोकस तो देना है. see, equal weightage has to be there as of now for CB1 and CB2, but if possible मैं आप मतलब I never advise this to anyone, but अगर आप skip करना चाहते हो live lecture तो you can go ahead with that, because if it is impacting your efficiency on day basically day efficiency, तो you can skip that lecture. Basically अगर आपको for example ऐसा लग रहा है कि CB1 में बहुत easy chapters की discussion चल रही है which I am comfortable with, just skip that. CB2 का कोई मुश्किल चैप्टर जैसे अभी नेक्स्ट जो सेशन होएगा CB2 का, दैट विल बी बिट डिफिकल्ट बिकॉज उसमें हम लोग चैप्टर 7-8 करेंगे, तो दैट्स बेसिकली डिफिकल्ट यूनिट. तो वो आपने अटेंड कर लिया कि चलो इट्स डिफिकल्ट. बट अगर जब हम इजी चैप्टर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो इफ यू वांट टू स्किप यू कैन फील फ्री टू स्किप इट सो दैट एटलीस्ट योर एफिशिएंसी इज नॉट इम्पैक्टेड. बस ये रीजन है. मतलब ऑल्दो आई डोंट एडवाइज एनीवन की टू नहीं, स्किप एनी लाइव सेशन. मैं स्किप करूंगी भी नहीं बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम एंड बहुत बाद में स्टडी शुरू वो किया है. तो आई थिंक आई हैव टू अटेंड दैट ऑल थिंग. मैम एक और क्वेश्चन लास्ट. आईएफए में अभी क्लोज बुक है. सो क्लोज बुक यस. में क्या हम जस्ट उसका जो जैसे CB1 CB2 के ये है ग्लॉसरीज टाइप के जो होते हैं वो क्या ओपन करके रख सकते हैं कुछ भी क्या? ओपन नहीं कर सकते. नथिंग एट ऑल बिकॉज योर माइक विल बी ऑन एंड योर कैमरा विल बी ऑन. तो यू आर जस्ट अलाउड टू यूज टेबल्स बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर CB1 एंड CB2. अदरवाइज आप सिर्फ रफ शीट्स है जो अगर कुछ न्यूमेरिकल करना है या कुछ भी करना है यू कैन यूज दैट. अदर देन दैट वी आर नॉट अलाउड टू यूज एनी अदर थिंग. फॉर्मूला शीट करके कुछ होता है वो नहीं ओपन करके रख वो सकते? टेबल बुकलेट होता है. जो टेबल बुकलेट हम्म. आपको CB1 CB2 में यूज ही नहीं करना तो वो आप नहीं यूज कर सकते. टेबल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना CB1 CB2 में. वो जो टेबल आपका फॉर्मूला बुक है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय IFO ओनली. वो फॉर्मूला वो नहीं है कि जो हम लोग CB2 में फॉर्मूला सीखते हैं वो हम लोग नहीं ओपन कर सकते. ओके, थैंक यू.
Yeah. So Bhavya says, I'm done with micro content lecture, past paper lecture till chapter 6 are done. तो ठीक है, अगर 6 तक हो गया तो I am fine with those students who have completed targets till date. Pushpinder says only content video. However, grasping power is bit down as I have restarted my studies after 10 years. I am now thinking to shift my exam in September. I had planned for both CM1 CV2. My situation are same. My objective is to clear into core time constraint. But मैं पुष्पेंद्र आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट का इशू है, आप इस पॉइंट पर डिसीजन लो कि मुझे कौन सा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट अप्रैल के लिए प्लान करना है. मैं आपको एडवाइस मतलब डाइट स्किप करने का बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी. डेफिनेटली नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. डू गिव योर बेस्ट एंड चूज द वन सब्जेक्ट इन विच यू आर मोर कंफर्टेबल. इफ यू फील आई एम मोर कंफर्टेबल इन CM1 as of now, go for that. If you feel I'm more comfortable in CV2, go for that. But don't skip it. Prepare it for April attempt, just one subject, and remaining subject you can extend to September. But skipping is something which is definitely not recommended. You don't know how the paper will come in September, right? Maybe some things have changed. Maybe the pattern changes. कुछ भी हो सकता है. So why to skip the diet when you are preparing for that? एक subject pick कर लो and go for it. Manya's okay, Manya को हो गया. Hinesh, syllabus is complete. Gave IFI September, got 52. Given II November, waiting for result. Preparing to give CS1 again in February. ठीक है. So Hinesh, till the time your result is not out, तो अब तक आप CS1 पे फोकस करो and hopefully result should be positive. But if again there's some issue, तो do connect with me on individual level and then we will discuss it कि what should be your plan going forward. So Janvi says content lecture till chapter 7, past papers lectures in the process, practicing first 7 chapter topics. So slightly slow, Janvi, try to pace up. So Bhavya says, I have paired it with CM1, so how can I proceed? So Bhavya, as I mentioned, if you are giving it along with another subject, तो CM1 is definitely a big subject, तो आपका ज़्यादा time CM1 पे जाना चाहिए. So it depends on how much time you can give on a daily basis. So as of now, just try to give 3 hours to CM1 and 1.5 hours to CV2 on a daily basis. This should be your plan. So it has to go simultaneously, as I mentioned in the start only. It should not be like this, ki first 7 days I'm focusing on CM1 and then on CB2. It has to go simultaneously. But yes, because CM1 में आपका Excel भी है, आपका content भी है इतना ज़्यादा, तो focus आपका CM1 पे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए compared to CB2 and devote more time to CM1. Try to find out your mistakes, try to work on the past papers questions and see how you are lagging behind and give more time to CM1. ठीक है. सो बेसिकली विद दिस सेशन व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस इज कि मतलब आपको अब एक आइडिया मिल गया कि आपके बैचमेट्स किस लेवल पर चल रहे हैं. तो हमें जो भी स्लो चल रहे हैं, आप लोगों को आइडिया मिल गया कि हमें कितना पेसअप करने की रिक्वायरमेंट है. सो बेसिकली जो भी आपके पास टारगेट्स आ रहे हैं, आपका ये प्लान होना चाहिए कि आई नीड टू रैप अप द टारगेट्स. और अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पिक किया है तो थोड़ा सा केस आप लोगों के लिए डिफरेंट होता है. तो ऑल्दो हम लोग टारगेट इस तरीके से देते हैं कि ऑल दोज हु हैव प्लान फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स दे आर आल्सो एबल टू कंप्लीट इट. बट अगर थोड़ा सा लैग चल रहा है और एक साथ में सब्जेक्ट चल रहा है, दैट्स ओके. लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है और फिर भी आप बहुत पीछे चल रहे हो, तो डेफिनेटली यू नीड टू पेस अप. और जो भी आपने डिसीजन लेना है, आपके पास फरवरी तक का टाइम है बेसिकली, जब तक एग्जाम डेट की लास्ट डेट नहीं है फिल करने की, उस टाइम तक आपके पास टाइम है कि मुझे कौन से एग्जाम्स प्लान करने हैं. मैं डाइट बिल्कुल भी आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी स्किप करने के लिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर वन एग्जाम, गिव योर बेस्ट एंड गिव योर एग्जाम. If you are planning for 2 exams and if you are not comfortable, choose the subject only today only कि मेरे को ज़्यादा मैं comfortable किस subject में हूँ, and start preparing for that subject, and remaining subject you can extend to the next time. But जो भी decision लेना है, it should be ASAP so that you can pay justice to the first subject at least. 2 सब्जेक्ट के चक्कर में दोनों सब्जेक्ट से जाओगे, इससे बेटर है कि एक सब्जेक्ट चूज कर ले जिसमें भी हम ज्यादा कंफर्टेबल है और उसको प्लान करें. तो मैंने आपको समझाया जॉब के लिए CM1 CS1 इज मोर रेलिवेंट. और अगर टाइम है, मतलब मैं तो फिर भी आपको यही बोलूंगी कि आपकी प्रायोरिटी है कि हमारे थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पहले रैप अप होने चाहिए. बट अगर लग रहा है कि CM1 CS1 बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है, बहुत हम स्लो चल रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर CB2 इन अप्रैल में. लेकिन
आप ये देखो कि आपके बैचमेट्स जो हैं वो फेब्रुवरी में भी CV2 प्लान कर रहे हैं, तो CV2 अगर हम फेब्रुवरी में दे सकते हैं, वो अगर CV2 फेब्रुवरी में दे सकते हैं, तो आपको क्यों अप्रैल मई 2025 के लिए इतना टाइम चाहिए? तो दिस शुड बी योर, दिस कंपटीशन स्ट्रेटजी शुड बी देयर इन योर माइंड कि यस आई नीड टू रैप अप द थिंग्स फास्ट। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू डिस्कस विद मी? डाउट्स का मैंने मैम, आप लोगों को बोल दिया कि पुट इट ऑन पोर्टल। यस। जैसे आईएआई ने सारे एग्जाम्पशन दिए हों कि यदि मैं आईएफएस से जो भी पेपर क्वालिफाई कर लेती हूँ तो वो आईआईए में कंसिडर हो जा रहा है। ऐसा कुछ हम्म। रेसिप्रोकल वे में है क्या कि नहीं मैं नहीं कुछ नहीं, आईआईए के एज लिए ऑफ सोचूं? नाउ, एज ऑफ नाउ आईएफओ की तरफ से कोई एग्जाम्पशन नहीं है। आईआई इज गिविंग एग्जाम्पशंस, आईएफओ का अभी कुछ भी नहीं है एग्जाम्पशन। अम, क्या कुछ बेनिफिट होगा यदि मैं साइड बाय साइड आईआईए के लिए भी अप्लाई करूँ तो? अब एज ऑफ नाउ मैं आपको बोलूंगी आप एक ही सोसाइटी पे स्टिक रहो, बिकॉज एग्जाम्पशन नहीं है ओके, तो हम दो सोसाइटीज रिकमेंड ही नहीं करें। आप एक ही सोसाइटी आईएफओ पे स्टिक रहो। ओके। और मैम कभी आप जी लोगों ने मतलब यूएस बेस का ये किया है क्या? नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एसओ एसओए, CESNS? यस यस या एसओए है, बट अभी क्या है इंडियन मार्केट में ना, बेसिकली चाहे मैं एमएनसीज की बात करूं या फिर अदर इंडियन कंपनीज की बात करूं, तो हम्म एसओए का जो डिमांड है दैट इज वेरी लिमिटेड। देयर आर कंपनीज हु आर nowadays promoting SOA, but we have very limited companies who are promoting SOA. Rest all are just focus more on IA and IFO only, and the main reason for students joining in this profession is that they want to get to the job ASAP. So for that हम्म purpose, we always say कि we guide for IA and IFO only. The reason being the level of exam is also quite different of SOA. तो वो जो हम्म। नॉलेज आपको चाहिए है ना, वो नॉलेज आपको सिर्फ IA IFO से ही हो सकती है। सो डोंट जस्ट focus yourself only on that particular thing which is not applicable for all the companies. So I would recommend you to stick to IFO. That's a parent body और वो हर जगह acceptable है। इवन यूएस में भी? बिकॉज मैम हाँ हाँ मेरा हाँ लोकेशन हाँ। अभी यूएस है और मैंने अपने कुछ ऑफ द एक्चुरियल फ्रेंड से पूछा था जो हम्म एक्चुरीज हैं। हम्म। सो दे सेड कि दे वर इन पोजीशन टू गाइड मी अबाउट आईएफओए ओनली, तो डोंट गो फॉर अ एसओए करके। तो हाँ इसलिए मैंने मतलब आईएफओए यस ऑप्ट यस, किया। आईएफओए इज एक्सेप्टेबल इन एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज वो ही सबसे बड़ी सोसाइटी है, सबसे पुरानी सोसाइटी है। एसओए तो मतलब ठीक है अभी ग्रूम कर रहा है अभी, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बाकी कंट्रीज में भी, आप यूके में भी करोगे अगर, तो इतना ज्यादा एसओए का नहीं है। इसलिए वी डोंट रिकमेंड एसओए, गो फॉर आई और आईएफओए। ओके, सो डिसीजन इज नॉट रॉन्ग, थैंक यू। यस यस। या यस उमंग जल्दी। यस मैम, एक्चुअली जैसे ये एग्जाम्पशन वाली बात थी, सो मैम करेंटली आई एम हम्म वर्किंग विद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो मेरा एसोसिएट हो रखा है, तो वो हम्म CB3 का एग्जाम्पशन मिल जाता है। दिस वाज द प्राइम रीजन कि मैं पहले CB2 देने की सोच रहा हूँ। मैंने जो आपका अभी आपने जो सेशन लिया उसमें से मैंने जो टेक अवेज है मेरे, वो ये है कि हम्म सबसे पहले कंटेंट प्रिपेयर करना है, लेक्चर्स हम्म कवर करने हैं, फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स कवर करना है। उसके बाद हम्म। मैम आपने मेंशन किया कि लेटेस्ट लाइव सेशंस देखनी है। आर यू रेफरिंग टू द यूट्यूब सेशंस, क्योंकि मेरे पास तो नो वो नो होंगे नो, नहीं। यूट्यूब नहीं है। यूट्यूब पे लेटेस्ट लाइव सेशंस आपके पोर्टल में ही ऐड होंगे। आई थिंक अभी शायद ऐड नहीं हुए हैं लेटेस्ट लाइव सेशंस, तो दे विल बी ओके अपलोडेड इन नेक्स्ट 2-3 days। तो जब भी अपलोड होंगे आपके पास मतलब एक बार आप पूछ लेना, टीम का नोटिफाई कर देगी आपको। तो लेटेस्ट लाइव सेशंस आपके CP2 के पास पेपर्स वाले फोल्डर में ही अपलोड होंगे। तो जस्ट आस्क द टीम फॉर दैट थिंग, दे विल गाइड यू। मैम, बट मेरे पास तो रिकॉर्डेड लेक्चर वाला कोर्स है ना, तो इसमें भी आएंगे क्या वो? हाँ हाँ हाँ, लाइव सेशंस आर देयर। मतलब लाइव सेशन की वीडियो, इवन इफ यू हैव टेकन द वीडियोस, तो लाइव सेशन की ओके वीडियो पोर्टल पे अपलोड होती है। ओके ओके ओके, ठीक है। सो आफ्टर दीज सेशंस आई हैव टू डू द समरी लिस्ट, देन यस असाइनमेंट्स एंड देन मूव ऑन यस टू द यूनिट टेस्ट। राइट। हाँ, और मैं आपने एक जनरल सी गाइडलाइन दी थी कि 26 जनवरी तक मैं अपना माइक्रो का हम्म। कंटेंट और पास पेपर्स खत्म कर दूं, फिर 12 फरवरी तक आई थिंक यू सेट की मैक्रो खत्म कर दूं, और फिर बाकी यस, पास पेपर्स रहेंगे 7-8 दिन में जो मैक्रो के, राइट? यस यस यस। ओके तो मतलब ओके, दिस इज ठीक है। वैलिड फॉर ऑल फेब्रुअरी स्टूडेंट्स कि आप इस तरीके से कर सकते हो। मतलब ये मैक्स डेडलाइन है, इससे पहले हो जाए तो और बढ़िया है। ओके ओके ओके। एंड मैम, कंसिडरिंग कि इस बार भी मेरे ऑफिस में लोगों ने दिया था CB2, तो वो लोग कह रहे थे कि मैक्रो थोड़ी ज्यादा आ गई थी और थोड़ा पेपर थोड़ा टफर साइड पे आ गया था, पेपर उन्होंने टफ काफी आएगा सारे। बिकॉज एमसीक्यू हो चुका है, मैंने ओके, आपको बताया। पेपर तो डेफिनेटली जी जी टफ जी। आएगा, सो डोंट टेक हाँ, एमसीक्यूज लाइटली। एंड ओके ओके। जितना आप बेस अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, उतना आई वालों के लिए इजी हो जाएगा अटेम्प्ट करना। जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उतना हम्म। एवरी क्वेश्चन विल स्टार्ट बिकमिंग डिफिकल्ट। यस मैम, यस मैम, यस।
सो मैम आपने ये भी कहा था कि ओरिएंटेशन सेशन वगैरह देख लेना, तो मैं आपको राइट। अगस्त से फॉलो कर रहा हूँ, बट ओके अभी IRDI का एग्जाम था तो मैंने वो नवंबर में दिया नहीं, तो ओके अभी से मैं शुरू कर रहा हूँ ये चीज़, तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया है। बाकी मैं ये चाह रहा था कि अभी मैं कंटेंट लेक्चर्स देखूंगा, अगर पॉसिबल हो तो वुड इट बी पॉसिबल कि मैं टीम के थ्रू आपसे एक बार कनेक्ट कर सकूं एग्जाम के पहले? हाँ 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 हाँ, आप एक बार टीम को बस मैसेज कर देना, दे विल कनेक्ट यू। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक ओके। So yes, Manya, मेरी I have my another class scheduled at 3 p.m. Guys, जल्दी से जो भी पूछना जल्दी से पूछ लो। मान्या, yes। मैम जो एक्स सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं जो उसमें दिए समरी लिस्ट, कुछ नहीं करना, वो सब कुछ आपके हमने लाइव सेशन में डिस्कस करे हुए हैं। तो अगर जब आप पास्ट पेपर सेशन देखोगे तो उसमें मैंने एक्स सीरीज भी करवाया हो। ठीक है। और अभी ना लेटेस्ट समरी लिस्ट और लेटेस्ट असाइनमेंट्स हम लोगों ने अपलोड करे, तो डू मेक श्योर कि आप लोग लेटेस्ट समरी लिस्ट और लेटेस्ट असाइनमेंट्स ही देख रहे हो, बिकॉज अर्लियर पुरानी वाली असाइनमेंट्स और समरी लिस्ट अपलोडेड थी, ठीक है, बट हमने वो डिलीट कर दिया। लेकिन अगर किसी ने वो डाउनलोड करा हुआ था तो आप शायद आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। तो एक चीज करना, आप लोग सेशन के बाद समरी लिस्ट और असाइनमेंट्स अपनी डिलीट करके लेटेस्ट समरी लिस्ट और असाइनमेंट्स पोर्टल से डाउनलोड कर देना। जिन्होंने अभी रिसेंट में ही 10-12 डेज में ही डाउनलोड करा, उनको डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन्होंने बहुत पहले से डाउनलोड किया हुआ है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, डू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट समरी लिस्ट एंड असाइनमेंट्स, एंड पहले वाला डिलीट करके एक बार बस दोबारा से डाउनलोड कर लो उसको। उसमें 2024 तक के क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है। सो ओके गाइस, लेट्स जस्ट रैप अप फॉर द डे। अब मुझे आप लोगों के डाउट्स चाहिए टिल चैप्टर 6, तो हम डाउट सेशन लेंगे नेक्स्ट वीक, अदरवाइज मैं चैप्टर 7-8 स्टार्ट कर दूंगी। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि वेदर यू वांट मी टू कीप अ डाउट सेशन नेक्स्ट वीक और नॉट। इफ आई गेट द डाउट्स इन नेक्स्ट 1 or 2 days, मैं नेक्स्ट 1 or 2 days भी नहीं, अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप मैसेज कर देना टीम को, ताकि मैं आज स्केड्यूल बनाऊंगी, ठीक है। तो आज शेड्यूल बनाते समय ऑटोमेटिकली आई विल कैप्चर दैट कि हाँ आपके पास डाउट्स है, तो आई विल कीप वन सेशन। अदरवाइज इफ देर आर नो डाउट्स, तो मैं नॉर्मल चैप्टर 7-8 का डिस्कशन सेशन हम लोग करेंगे। तो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट मी टू कीप अ डाउट सेशन और नॉट, फर्स्ट थिंग। Second thing, as we know कि IR results are also approaching, तो me and sir will also be keeping a session for IR students exclusively. And then अभी IFOA का membership वाली deadline complete होगी, तो IFOA के एग्जाम्स का भी स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, तो उससे पहले भी हम लोग आके जनरल सेशन लेंगे। तो अभी अब से हम लोग टॉक सेशंस कमेंस कर रहे हैं, जैसे मैंने ओरिएंटेशंस में बताया था कि टॉक सेशन विल बी वाया जूम। तो डू मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग ईच एंड एवरी टॉक सेशन, कोई भी सेशन मिस मत करना। डू मेक श्योर, और जूम सेशन अटेंड करने का एक ही रूल है कि आपको वीडियो ऑन एंड माइक ऑन, एंड कीप योरसेल्फ इन एन आइसोलेटेड रूम एंड पे अटेंशन टू व्हाटएवर थिंग्स। जब आप बाकियों का भी सुनते हो ना, तो आपको बहुत चीजें पता चलती है कि हाँ, कि कैसे लोग क्या इतना पढ़ रहे हैं, कैसे स्ट्रगल ले रहे हैं पढ़ने की। आप लोगों के सामने है कि जो लोग ग्रेजुएशन वाले हैं और जो लोग इतने इतने टाइम बाद उठा रहे हैं, और आप वो देखो कि उनकी स्पीड आपके साथ मैच कर रही है, तो आप लोग कितना पीछे चल रहे हो। आप लोग तो अभी कॉलेज में, आपको तो और ज्यादा पेसअप करने की रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो विद दिस वी रैप अप फॉर द डे। सो थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी। Thank you. Same to you. Happy Makar Sankranti and Lodi.